Hello 10th class students. Today I am going to continue our chapter number 3rd of history, programs and achievements of early nationalists, and this is part 2nd which I am going to discuss with you. In the previous video, part 1, I discussed about the moderate phase and I tell you the introduction about the moderate phase and then what were the beliefs of the early nationalists and at last the methods adopted by the moderates. Now in this video I discuss the demands of the early nationalists. First of all, there are the various demands were led by the early nationalists, and first demand was about the constitutional reforms. Constitutional reforms means they wanted some reforms within the constitution of the British India. तो मीन्स जो ब्रिटिश इंडिया के लिए, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, दे वांटेड द रिफॉर्म विद इन दैट वन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वांटेड द एबोल्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल. एबोल्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, देखो एबोल्यूशन मीन्स रिमूवल ऑफ द इंडियन काउंसिल. Actually after the 1850 the revolt of 1857, then when the India came under the direct control of the Queen of England, then they set up the viceroy and the secretary and the council under the secretary, which consists of the 15 members. And these 15 members of the secretary were highly paid officers. So they wanted, the internationalists wanted the abolition of the Indian Council. Secondly, they wanted the expansion of legislative council. Legislative, देखो legislative means law making जो body होती है, तो जो legislative councils थी and legislative assemblies means in the sense you can say that the right in the our parliament there are the Lok Sabha and Rajya Sabha. In the same manner, some of the states even in India now have the assemblies also and council also. So in the same manner, they wanted the expansion. Expansion means more members should be included in the legislative council and legislative assemblies, both at the central level and at the provinces level. जो भी provinces थे, जो भी Britishers के अंदर provinces थे and जो भी central में थी, जो central legislative थी, they wanted the expansion means more members included in the legislative council and legislative assemblies. Then they wanted adequate representation in the executive councils of the viceroy. अब देखो जो viceroy था, अब जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ठीक है, जो मिनिस्टर्स उनके साथ मिलकर काम करते हैं. तो इन दिस वे जो इंडस जो उस टाइम पर जो मॉडरेट लीडर्स थे, they wanted the adequate representation. Adequate representation means Indian members should be included in the executive councils of the viceroy. Okay. After this, direct system of election. They wanted the direct system of election. And last, स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. तो उसके बाद लेटर ऑन काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने स्वराज्य की डिमांड की. स्वराज्य का मीनिंग क्या होता है? देखो, खुद की गवर्नमेंट हो, हमारा खुद का, हम खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन करें, बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर मीन्स ब्रिटिशर्स के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर रहकर, ठीक है, ब्रिटिशर्स एम्पायर जो है उसका रूल रहेगा, बट वी एडमिनिस्टर आवर सेल्फ, हम खुद का जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का वो इंडियंस के हाथों में हो. दैट इज कॉल्ड द स्वराज्य और द सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. एबोल्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल, adequate representation of the in the executive council of the viceroy, expansion of legislative council and legislative assemblies, direct system of elections, and at last swarajya or self government within the British Empire. Next is the administrative reforms. Under the administrative reforms, firstly they want the repealing of Arms Act and License Act. Repealing means cancel. They wanted to cancel the Arms Act. अब Arms Act क्या था? Arms Act was an act in which Indians were required to have a license to keep the arms with them. अगर Indians के पास license होगा तभी वो अपने पास weapons रखेंगे. And this thing was not apply on the Europeans. And then second is the License Act. License Act क्या था? That to you can say to open any of the new profession or to business, these requires the license. Means अब देखो, अगर आपको कोई भी like example जैसे कि अगर एक अपने कोई बुक
अपनी कोई बुक पब्लिश करनी है, ओके, कोई बुक पब्लिश करनी है, कि न्यूज़पेपर आपने अपना कोई पब्लिश करना है, ठीक है, एडिटिंग करनी है न्यूज़पेपर्स की, तो उस टाइम पर एक आपको एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस पास करेगी तब भी आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन द सेम मैनर ब्रिटिशर्स पास लाइसेंस एक्ट। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे बिजनेसेस थे, प्रोफेशंस थे जिनके लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी था। वो सेम था जैसे कि बुक्स पब्लिश करनी है, आपको पता है कि उस टाइम पर ब्रिटिश रूल था, एंड उनको ये मे बी उनके मन में ये डर था कहीं ना कहीं कि जो इंडियंस हैं अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स के थ्रू जो बाकी के इंडियंस हैं उनके अदर जो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियंस को कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट जो एक रिवॉल्ट है वो कहीं ना स्टार्ट हो जाए बाय अगर ऐसी कोई बुक्स उनके अगेंस्ट पब्लिश होती हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर लाइसेंस एक्ट पास किया था। तो दे वांटेड, जो हमारे जो मॉडर्न लीडर्स थे, दे वांटेड द रिपलिंग ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द लाइसेंस एक्ट। नेक्स्ट इज द पावरफुल म्यूनिसिपल बॉडीज। अब आपको पता है जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, दे वर्क एट द लोकल लेवल्स, तो उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि वो स्मूथली अपना वर्क कर सकें इन द बेटर वे। इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इंडियनाइजेशन देखो, इंडियनाइजेशन मीन्स कि जो इंडियंस मेंबर्स हैं, इंडियंस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट में उनको सर्विसेज मिल सके। जो भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियंस कैन गेट द मोर जॉब्स, मोर पोस्ट इन द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ICS एग्जाम, ICS मीन्स जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स है, टू बी हेल्ड सिमिल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। सिमिल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम, कि जो ICS एग्जाम्स है दैट शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम इन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो दीज आर द डिमांड एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय द मॉडरेट्स। Next is the separation of executive and judiciary. अब executive, you know it very well that executive are the ministers who execute the laws, okay, and judiciary means our courts like Supreme Court, High Court, subordinate courts, etc. They come under the judiciary. So they wanted that there should be the separation of executive and judiciary. तो आपस में separation होनी चाहिए, means executive की कोई भी अथॉरिटी ना हो, जुडिशरी में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो in the working of the judiciary. Okay, so they wanted the separation of executive and judiciary. And then next, spread of education among the masses, means thousands of people जो भी हैं उनके इंडिया के जो लोग हैं उन तक एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो सके, वो असेस लोगों तक असेस हो सके जो एजुकेशन सिस्टम है। सो दे वांटेड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द masses. Improvement of the police system. Now they wanted the police system must be improved. Okay, so these are the some of the administrative reforms. That is the repealing of Arms Act and License Act, powerful municipal bodies, Indianization of higher administrative services, ICS exam to be held simultaneously in England and India, separation of executive and judiciary, spread of education among the masses, and then improvement of police system. थर्ड पॉइंट इज डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। अब देखो सिविल राइट्स है, मीन जो सिटीजन्स के राइट है उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड एबोल्यूशन ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था इसके बारे में। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट इज एक्ट जिसमें कि अगर लगता है कोई पर्सन सस्पेक्टेड है, ठीक है, सस्पेक्टेड कोई पर्सन है जिसकी वजह से आगे कुछ क्राइम हो सकता है, कोई रिवॉल्ट हो सकता है, कोई रिट्स हो सकते हैं, ऐसे कोई राइट्स हो सकते हैं, तो उसको अपने कस्टडी में रखती है पुलिस, ठीक है। हमारे इंडिया में यहाँ पर 3 months से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको पता है इंडियन में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो उनके पास, अब ब्रिटिशर्स के पास राइट था अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, किसी को भी वो जेल में डाल देते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को एबोलिश करने के लिए, इस चीज़ को कवरअप करने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, दे वांटेड द एबोल्यूशन ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, जो कि एक सिविल राइट था। राइट टू असेंबल एंड फॉर्म एसोसिएशंस, असेंबल हो सके पर्सन्स इजिली, एंड दे कैन आल्सो फॉर्म एसोसिएशंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसको फ्रेम अप कर सके, तो इसका राइट होना चाहिए सिटीजन्स के पास। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एबोल्यूशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो स्पीच देने का राइट होना चाहिए। एबोल्यूशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप का मीन्स क्या होता है, प्रेस देखो, जो प्रेस का कोई भी आर्टिकल है, कोई भी अगर वहाँ पे कोई क्लॉज गिवन होता है विच इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन दे एडिट इट। तो जो उस टाइम पर ब्रिटिश और ऑफिसर्स थे वो एडिट कर देते थे,
सो दे वांटेड एबोल्यूशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप. ऐसा नहीं होना चाहिए. मीन्स प्रेस मस्ट हैव द फ्रीडम टू मीन्स टू प्रिंट आउट विच एवर दे वांट. ठीक है, तो कुछ भी जो उनका प्रिंटिंग जो मैटर है, मटेरियल है, उसको वहाँ पे उसकी जो कटिंग है सेंसरशिप के अकॉर्डिंगली वो नहीं होनी चाहिए. सो एबोल्यूशन ऑफ प्रेस सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एबोल्यूशन ऑफ द प्रेस सेंसरशिप. तो दीज आर द राइट्स which the modern leaders demanded from the Britishers under the Defence of Civil Rights. First of all, the abolition of the Prevention Detention Act. Second is the right to assemble and form association. Third is the freedom of speech and abolition of press censorship. Okay. Now come to the last point of this demands. Economic reforms. अब देखो, they wanted some of the economic reforms. First of all, they wanted रिडक्शन ऑफ हैवी लैंड रेवेन्यू. जो हैवी लैंड रेवेन्यू में जो हैवी टैक्स जो आ रहा है लैंड से, जो हैवी टैक्स जो पीजर्स हैवी टैक्स पे कर रहे हैं अंडर द जमींदारी सिस्टम, इट मस्ट बी रिड्यूस. वो रिड्यूस होना चाहिए. ठीक है, वो कम हो जाना चाहिए. सेकेंडली, इंक्वायरी इनटू इंडियाज पॉवर्टी एंड फेमिन्स. जो इंडिया में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, जो फेमिन, जो अकाल पड़ रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड आ रही है, तो उसका रीजन क्या है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. ठीक है. चीप क्रेडिट टू द पीजर्स. चीप क्रेडिट मीन्स लोन. जो लोन है वो इजीली अवेलेबल हो टू द फार्मर्स. पीजर्स मीन्स फार्मर्स. तो फार्मर्स को इजीली अवेलेबल हो जो लोन है थ्रू द बैंकिंग फैसिलिटीज, थ्रू द नेटवर्क ऑफ द बैंक्स. चीप क्रेडिट मीन्स सस्ता लोन हो. सस्ता लोन का मीन्स क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज की दर होती है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम हो. ओके, तो चीप क्रेडिट टू द पीजर्स. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. तो इसकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया जाए. डेवलपमेंट हो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की. रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी. जो एक्सपेंडिचर, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने एक्सपेंडिचर. रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, कि जो आर्मी का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो. एंड मोर एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑन द एजुकेशन सिस्टम. तो लोगों के वेलफेयर के लिए एजुकेशन के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर हो, बट कम हो ऑन द आर्मी. रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी. नेक्स्ट इज द एबोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स. तो अब उस टाइम पर भी देखो उन्होंने कुछ सॉल्ट टैक्स लगा के रखा हुआ था. बाद में एक्चुअली महात्मा गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जब इन्होंने और इसमें अडॉप्ट कर दिया था सॉल्ट टैक्स के रेट और हाई हो गए थे. देखो सॉल्ट टैक्स एक्चुअली में, सॉल्ट क्या होता है, हमारी एक बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी. ठीक है, तो उस चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ था. सो दे वांटेड टू एबोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट का टैक्स जो है वो खत्म हो जाना चाहिए. एबोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स. डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. सो दे वांटेड कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, इरिगेशन, जो भी आप वाटरिंग खेतों को जो हम ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द हार्वेस्टिंग जो भी हम वगैरह पानी वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो फैसिलिटीज जो हैं, जैसे ट्यूबवेल्स हैं, कुएं वगैरह है, वेल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए. इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नहरों की खुदाई, कैनल्स वगैरह ये होनी चाहिए. हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है हमारी उस टाइम पर इम्प्रूव होनी चाहिए, बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर द मेडिकल एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़. So these are the economic reforms which the moderate leaders wanted from the British government. That is the reduction of heavy land revenue, inquiry into India's poverty and famines, cheap credit to the peasants, development of modern industries, and then reduction in the expenditure on the army, abolition of the salt tax, development of banking, irrigation, and health facilities. So these are the students about the demands of the early nationalists. I complete this topic today. Hope all of you are studying at your home. Hope for your best. Have a nice day. Goodbye all of you.